Good evening, everyone. I hope you all are fine. I am Suraj, and I am very happy to invite you for the webinar. The topic is busy for electronic businesses. So, you know that electronic business is a fast moving and customer centric business and competitive business in today's world. And to run it successfully, you need to manage your inventory, sales, and accounts properly. For this, a good business management software is very important. Without software, you can't run your business properly. That is where Busy help you, and Busy makes it simple to handle the challenges of an electronic store. It is designed for specially to meet your requirements. And in today's session, we will see how Busy can help you easily manage your multiple brands, category of goods, as well as handle multiple prices, discounts of the customers, etc. And also how to create the GST bills properly with GST compliance, and how to track serial number wise, and how to track the stock movements in real time. Everything we are going to cover in today's class. So whether you have a one shop or a multiple stores in your businesses, so you can manage it all the ways, because you can filter the reports as per your requirement either by one shop or by multiple shops. So as we go through the session, if you have any type of questions, kindly write it down, and we will take it our Q&A session. So here's small story I want to say you. It's a story of Mehta Electronics. It was one of the electronic store. So यहाँ पे एक story मैं आपसे बताना चाहता हूँ. Hi, I am Varun Mehta, the owner of Mehta Electronics, a mid-sized electronics store in Delhi. We have been in the business for over the last 3 years, selling home appliances like air conditioners, refrigerators, televisions, etc., along with offering installation and maintenance services. A year ago, my business was struggling with warranty management, inventory issues, and GST compliances. Busy Software turned everything around by streamlining operations, automating GST, and improving customer services. In just a year, sales grew up by 20%. GST fines stopped, and my business is thriving. Busy truly transformed by my operations. So यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन किया. जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है दिल्ली का, तो इनका क्या बेनिफिट हुआ है बिजी को लेके, सो मिस्टर वरुण मेहता, सो ये स्टोरी मैं आपसे शेयर किया. सो आगे स्लाइड में देखते हैं टर्निंग पॉइंट. व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ दे improve their business. So one day, a friend of mine who also owns a electronic business asked me why I was not using Busy Software. He explained how it had transformed his operations and suggested I give it a try. At first, I was doubtful. Could one software really make such a big difference? But really, Busy is a game changer in my business. This is one of the turning point in their business. So after purchasing the Busy software, he was successful in their businesses because earlier he was facing many challenges. उसमें उसमें बिजनेस में हो रहा था. एक बार उन्होंने खरीद लिया तो उसका सारा वहां पे एक लेवल पे एक ऑपरेशंस उनका सीमलेस हो गया. सो आगे स्लाइड में हम ये डिस्कस करते हैं हाउ बिजी बिकम अ गेम चेंजर फॉर माय बिजनेस. मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्यों ये गेम चेंजर बन गया, तो इसका ये क्या क्या रीजन से बन गया, तो ये हम समझ लेंगे. जैसे कि चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, हम अभी समझ लेते हैं कि मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. देन आफ्टर व्हाट इज द सॉल्यूशन दे गॉट इट फ्रॉम बिजी. So these points I am going to explain you by today. So please be active in the session. In between, if you have any questions, please note down, or else you can share it with chat box. I can take it up end of the session. So here there are some points. This is related to the billing. Billing का points यहाँ पर हमने दिया गया है. How can I speed up my billing process? So यदि आप आपका दुकान में बिलिंग प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो, स्पीड बिलिंग करना चाहते हो, क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं बिजी में. बिजी में तो पीओएस का प्रोविजन है, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन, एज वेल एज बारकोड स्कैनिंग. पॉइंट ऑफ सेल ऐसा एक विंडो है, स्क्रीन है, तो इसमें आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको कैसे चाहिए. हम देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकली. यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा. सो यहाँ पे मैंने कंपनी ओपन करता हूँ. कंपनी का नाम है मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर. दिस इज द यूजर क्रेडेंशियल. सो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स एंट्री का स्क्रीन होता है इस तरीके से बिजी में.
दिस इज कॉन्फ़िगरेबल। सो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कर्सर कहाँ पर आके रुकना है और किस पोजीशन पे आके रुकना है, और एंटर प्रेस करने के बाद इसका पोजीशन कहाँ पर जाना चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड। दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेबल स्क्रीन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज अवेलेबल अंडर द वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप जाके इसको खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशंस। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करके बाद में इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बारकोड स्कैन भी करना है तो यहाँ पर बारकोडिंग भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है, बारकोड नंबर है, डायरेक्टली हम इसको पेस्ट कर सकते हैं तो अपने आप आइटम पिक हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ से सीरियल नंबर को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अब अगर वो आइटम यहाँ पर फाउंड नहीं है तो फिर वो आपको स्कैन नहीं होता है। मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। हाउ कैन आई ट्रैक पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स? पेमेंट सेटलमेंट डिटेल्स करके होगा। हर एक बिल के बाद आपको इस विंडो खुलेगा, इसमें आप कैसे पेमेंट रिसीव किया है, कैश है क्या, कार्ड है क्या, फोन पे, गूगल पे, किस कैसे किया है वैसे एंट्री कर सकते हो। फाइनली आपको सेटलमेंट का रिपोर्ट भी मिल जाती है बिजी में। सो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक हम बिल कर लेते हैं, सेल्स वाउचर एंट्री। डेट एंटर किया हमने, पार्टी का मोबाइल नंबर से पार्टी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उनका डिलीवरी एड्रेस अलग हो तो अलग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डिलीवरी डिटेल्स। नहीं तो इस कस्टमर ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, उसका मोबाइल नंबर डालने से उनका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने आइटम को सेलेक्ट करेंगे, फिर आइटम का डिस्क्रिप्शन के साथ आइटम का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ये सब आपको लेना पड़ता है। मैं दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, गोदरेज। ये देखिए सीरियल नंबर का विंडो खुलेगा, सीरियल नंबर सेलेक्ट करते हैं। आपका वारंटी 12 मंथ का है, नहीं तो 10 मंथ भी कर सकते हो, मतलब उसका मॉडिफिकेशन यहाँ से होगा। उसके बाद सेव करेंगे तब ये सेटलमेंट का स्क्रीन अपीयर होता है। इस एक स्क्रीन के अंदर अगर आप कैसे पैसा कलेक्ट किया है, यदि हो सकता है आपने कैश के रूप में किया है तो कैश एंटर कर सकते हैं, और पार्शली कैश कलेक्टेड है, बाकी आपको कार्ड से पेमेंट मिला है तो यहाँ पर कार्ड पर एंटर कर सकते हैं। इसको आप जीरो कर लीजिए, यहाँ पर उसको कार्ड में एंटर कर लीजिए। दिस इज हाउ वी कैन एंटर द सेटलमेंट डिटेल्स अबाउट अवर सेल्स। फाइनली यू कैन सेव द इनवॉइस। वंस द सेल्स इनवॉइस हैज बीन सेव्ड, फर्दर यू कैन टेक द प्रिंट आउट। तो आपको कैसे इसको कॉन्फ़िगर करनी है वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेल्स इनवॉइसेस, फिर उसको प्रिंट करा सकते हो। सो इसमें अगर आपको देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, ये सब आपको प्रिंट पर आ जाती है। So this is how we can manage your settlements. Finally, you can get the settlement report in Busy here. Settlement details. Series wise और यूजर वाइज दोनों तरीके से इसको हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। कैश कितना कलेक्टेड है, पेटीएम कितना कलेक्ट हुआ है, फोन पे कितने हुआ है, कार्ड से कितना हुआ है, चेक से कितना हुआ है, ये सारा जानकारी आपको रिपोर्ट में मिलेगा। फाइनली आप इसको पीडीएफ, एक्सेल, गूगल शीट में एक्सपोर्ट करा सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन मैनेज योर कलेक्शंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ कैन आई रिमेम्बर द डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, फेस्टिवल्स एंड डील्स। ये काफी जरूरी फीचर है क्योंकि हमारे दुकान में क्या आइटम्स के लिए कितनी डिस्काउंट्स है तो ये याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंट्रीज एक्सक्यूज होता है। तो इस हर एक आइटम्स का जानकारी हम इसको याद नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम स्कीम्स का फीचर बिजी में यूज करके उसको कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं, ताकि कस्टमर आएगा तो बिलिंग पे ऑटोमेटिकली उस वाली ऑफर अप्लाई हो जाता है। देखते हैं इसको कैसे करना है। अब ये स्कीम मैनेजमेंट फीचर को हम यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा, इन्वेंट्री में जाके यहाँ से उसको एनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए इस वाली फीचर को यस एनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद मास्टर पर जाएंगे, वहां पे स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। स्कीम के अंदर ऑलरेडी 4 स्कीम बनाया गया है। इसमें पहला स्कीम है बाई वन गेट वन। बाई वन गेट वन के अंदर क्या होता है, अगर एलजी का स्मार्ट टीवी, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर ये एलजी का स्मार्ट टीवी हमने सेल करते हैं तो एलजी का स्पीकर भी फ्री मिलेगा, ऐसा एक ऑफर है। और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इस पर्टिकुलर डेट में कोई भी कस्टमर एलजी टीवी खरीद लेगा तो उनको एलजी का स्पीकर मिल जाती है फ्री में। दिस इज वन ऑफर। अदरवाइज सम फेस्टिवल ऑफर, जैसे कि दिवाली ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर। ये दिवाली का ऑफर तो लिमिटेड पीरियड होता है, 26 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक रहेगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये डेट भी हम मेंशन कर सकते हैं, चाहिए तो टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। जस्ट जस्ट लाइक 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड होता है, सो 12 बजे के बाद ऑफर वैलिड नहीं है, तो उस समय पे ये ऑफर कस्टमर्स को अप्लाई होता है।
इस ऑफर को आप देख सकते हो, एयर कंडीशनर के लिए 30% का डिस्काउंट सेट हुआ है, फैन के लिए 25%, टेलीविजन 30%, वॉशिंग मशीन 20%, और इंडिपेंडेंस डे ऐसा कुछ ऑफर होता है। तो उसमें अगर आपको ऑफर सेट करना है तो आप खुद यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसमें आप देखिए सैमसंग टीवी, अगर आप इंडिपेंडेंस डे है ना 15 अगस्त को लेते हो, तो सैमसंग स्मार्ट टीवी का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, मतलब 30,000 का प्रोडक्ट 20,000 में मिलेगा। 43 इंच का टीवी 50,000 का प्रोडक्ट 43,000 को मिलेगा। LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर 25,000 को मिलेगा। तो ऐसा करके ऑफर हम बना सकते हैं। ये देखिए न्यू ईयर का सेल है। न्यू ईयर के अंदर ये 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक क्रम्पटन ब्रूस का ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसके लिए ये ब्रांड के अनुसार कॉन्फ़िगर किया गया है। इसके लिए देखिए 34% डिस्काउंट है। गोदरेज ब्रांड के लिए 60% है, हैवेल्स के लिए 40% है, सैमसंग के लिए 20% है, LG के लिए 60%, ओरिएंट के लिए 30। तो ऐसा करके हर एक ब्रांड के लिए ब्रांड की तरफ से ऑफर मिलता है कस्टमर्स को। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द स्कीम्स। ये स्कीम्स कैसे हम अप्लाई करना है वो भी हम अभी समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा बिल एंट्री है। इसमें पहले हम इंडिपेंडेंस डे का ऑफर अप्लाई करके चेक करेंगे। कोई भी कस्टमर अगर आपका दुकान में आएगा, उनका मोबाइल नंबर से हम उसका नाम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे F3 करके इंस्टेंटली पार्टी का नाम क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर ये पार्टी मूविंग कस्टमर है तो उनका नाम लेजर अकाउंट बना के रख सकते हैं। और अगर वो रेगुलर कस्टमर हो तो भी उनका GST नंबर से पार्टी मास्टर भी बना सकते हो यहाँ पे। अब आके हम एक यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि एक स्मार्ट टीवी सेलेक्ट करेंगे, सैमसंग स्मार्ट टीवी। अब यहाँ पे इसको ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे स्कीम अप्लाई हुआ है। इंडिपेंडेंस डे का ऑफर था कि ये 30,000 का टीवी 20,000 में हम दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से हमारा ऑफर अप्लाई हो जाती है स्कीम के थ्रू। यदि आप चाहते हो कि कोई दूसरा स्कीम अप्लाई करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट को 12 कर दिया, दिसंबर 15 कर दिया, दिसंबर 15 के डेट में क्या ऑफर अप्लीकेबल है वो ऑफर कस्टमर को ऑटो अप्लाई हो जाती है। LG 42 इंच का टीवी दे रहे हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर। स्मार्ट टीवी अगर हमने सेल किया है, LG का स्पीकर फ्री में मिलेगा। इसके लिए कोई प्राइस यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि ये फ्री आइटम है। ये ऑफर ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। अगर मैंने दूसरा डेट पे कोई ऑफर अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि 2 नवंबर में मैं बिल करना चाहता हूँ, उस समय पे क्या स्कीम मैंने बना के रखी हूँ उसी हिसाब से दूसरा ऑफर अप्लाई होता है। जस्ट लाइक एयर कंडीशनर सेल करते हैं, यहाँ पे हमने ये जो मेरा आइटम है सैमसंग स्प्लिट एसी, सैमसंग स्प्लिट एसी का ऑफर देखिए यहाँ पर अप्लाई हुआ है 30% डिस्काउंट, क्योंकि मैंने एसी लिया था। अगर मैं दूसरा टेलीविजन लेता हूँ, टेलीविजन करके प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो आप ये टेलीविजन के लिए क्या प्रोडक्ट ऑफर है, 30% का डिस्काउंट है, क्योंकि हम दिवाली धमाका ऑफर का स्कीम अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज हाउ द स्कीम कैलकुलेशन विल वर्क इन बिजी। फाइनली एंड ऑफ द डे यू कैन गेट द रिपोर्ट, हाउ मेनी स्कीम यू हैव गिवन इन विच प्रोडक्ट इन विच पार्टी। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं रिपोर्ट के अंदर। वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। इफ एनीबडी facing any problem means please let me know in the chat box, okay? My voice is not audible, my screen is not visible, so ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो मेरे को बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये शो करूंगा स्कीम का रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा। अब ये देखिए स्कीम यहाँ से पता चलेगा किस ऑफर आपको देखना है, उस ऑफर ले लीजिए, फिर उसको चेक कर लीजिए डेट के हिसाब से। अब कितनी सारे कस्टमर्स को स्कीम और ऑफर दिया है उसका डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाता है बिजी में। अगर ये न्यू ईयर का सेल का ऑफर कितने लोगों को दिया है, कितने कस्टमर्स को दिया है, अगर ये इंडिपेंडेंस का डे का ऑफर कितना कस्टमर्स को दिया है, ये सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो अब ये हमको क्लियर हो गया कि कैसे हम डिस्काउंट्स को दे सकते हैं, कस्टमर को ऑफर दे सकते हैं। आगे एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन आई फाइंड आउट हु सोल्ड द आइटम। अगर ये आइटम किसने सेल किया है कैसे पता कर सकते हैं। ये फीचर आपको यहाँ से एनेबल करना पड़ता है, जैसे कि सेल्समैन और ब्रोकर फीचर। कभी कभी कंपनी की तरफ से सेल्समैन होगा, नहीं तो डीलर्स होता है, नहीं तो ब्रोकर्स होता है। उनसे आपको कोई इंक्वायरी आएगा, फिर उनको कमीशन देना पड़ेगा। ये फीचर आपको यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा सेल्समैन करके। अकाउंट्स करके टैब में जाके सेल्समैन का फीचर एनेबल करना पड़ेगा। वंस यू एनेबल द फीचर ऑफ सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, then after you can tag the salesman or broker name in the individual product. For example, here you can see the item called Godrej double door refrigerator. अगर आपका ऐसा मान के चलिए आपका एक बड़े शोरूम है, 1-2 फ्लोर का शोरूम है, पहले फ्लोर पे 2 सेल्समैन होगा, दूसरे फ्लोर पे 2 सेल्समैन होगा।
अगर सेल्समैन एक रेफ्रिजरेटर का डिपार्टमेंट एक सेल्समैन देखेगा, एयर कंडीशन का डिपार्टमेंट दूसरे सेल्समैन देखेगा, तो अगर वो प्रोडक्ट है ना उसके लिए सेल्समैन हम टैग करके रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो गोदरेज का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, तो ये गोदरेज रेफ्रिजरेटर के लिए हमने एक सेल्समैन का टैगिंग यहाँ पर कर दिया है, हरीश मिश्रा करके। वॉज वन ऑफ द सेल्समैन इन द शॉप, वॉज टेकिंग केयर ऑफ एंटायर रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट। कोई भी अगर रेफ्रिजरेटर सेल होता है वो सेल्स का काउंट इनके नाम पे ऐड होता है। तो ऐसा हम हर मास्टर के अंदर सेल्समैन टैगिंग करके करके रख सकते हैं। उसके बाद इसका फाइनल सेल्स तो बनेगा, उसके बाद रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाती है, कमीशन कैलकुलेशन, सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्ट। एक सेल्समैन का देख सकते हो और एक आइटम का देख सकते हो, ऑल आइटम का भी देख सकते हो, उनका नाम लेके सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए हरीश मिश्रा जी का इतने सारे सेल्स हुआ है दुकान पे, और उनको कितना कमीशन भी देना है वो भी रिपोर्ट पे मिल जाएगा। एंड ऑफ द डे आप इस कमीशन को उनको पे कर सकते हैं, जर्नल पोस्ट करके फाइनल रिजल्ट्स में भी शो कर सकते हैं। यहाँ से जर्नल वाउचर ऑटोमेटिकली पोस्ट भी हो जाएगा। तो ये आपका अभी एक सेल्समैन का, अगर सबका देखना है सेल्समैन का, तो ऑल सेल्समैन का रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, इससे सबका दिख जाती है। हरीश मिश्रा जी का इतना सेल हुआ है, राधिका देवी जी का इतना हुआ है, राममोहन जी का इतना हुआ है। सो हर एक सेल्समैन और ब्रोकर का रिपोर्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है? ये ऑटो जनरेट होता है रिपोर्ट। ये हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हाउ कैन आई रिकॉर्ड कस्टमर डिटेल फॉर फ्यूचर प्रमोशंस। अगर आप फ्यूचर कोई कस्टमर अगर आएगा तो उनका मोबाइल नंबर से जान सकते हैं कि ये कब आया था, क्या लेके गया था। इस जानकारी को भी आप देख सकते हो। अदरवाइज कस्टमर का मोबाइल नंबर का एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो मोबाइल नंबर के हिसाब से, फिर उनको बल्क व्हाट्सएप ऐसा कुछ प्रमोशनल एसएमएस भेज सकते हो। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने एक बिल बनाया था। अगर ये बिल अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे एक बिलिंग शिपिंग डिटेल्स का विंडो आएगा। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक मोबाइल नंबर एंटर करने से, ये मोबाइल नंबर एंटर करने से उनका नाम अपने आप आ गया था, पार्टी का नाम। क्योंकि ये ऐसा होता है कि पहले बार अगर कस्टमर आके उनका मोबाइल नंबर दिया है पुराना बिल पे, तो ये नए बिल पे उसका मोबाइल नंबर डालने से पार्टी का नाम अपने आप आ जाती है। यदि आपको यहाँ से भी क्वेरी सिस्टम करके भी एक ऑप्शन है, ऑल्ट क्यू है इसका शॉर्टकट, ये वाली प्रेस करके उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रेस एंटर कर सकते हैं, और वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। कस्टमर का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर और उनका जानकारी आपको एंटर प्रेस करके देख भी सकते हो। बिल भी ओपन करके देख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर उनका लेजर अवेलेबल नहीं है फिर उनका डिटेल नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। बिजी में सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट उनका मोबाइल नंबर को डाल के आप ढूंढ सकते हो उनका प्रीवियस हिस्ट्री। तो अगर आपको ये आपका हो गया, हिस्ट्री हो गया, अगर इनका डिटेल्स आपको चाहिए, फिर आप एक कस्टम कॉलम लगा के उनका मोबाइल नंबर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सेल्स लिस्ट के अंदर। आप ये देखिए ये हमारा सेल्स रिपोर्ट है, इसके अंदर कस्टम कॉलम करके एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर जाएंगे और हम वहाँ पे हम मोबाइल नंबर का एक कॉलम लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर का कॉलम लगा सकते हैं, फिर ये मोबाइल नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फिर आगे बल्क व्हाट्सएप एसएमएस इस तरीके से प्रमोशनल मैसेजेस आप भेज सकते हो। ठीक है? ये कॉलम लगा के आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सेल में। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर प्रमोशनल एक्टिविटीज। हम समझ लेते हैं हाउ कैन आई क्रिएट एन एस्टिमेटेड बिल फॉर प्रिंटिंग एंड शेयरिंग। सेल कोटेशन से हो जाती है, एस्टिमेशन तो सबको पता है। बिफोर प्रोसीडिंग द सेल, some customer are visiting your showroom and they are asking the price for the product. If you given best price, then they are accepting the order. If you're giving the best price, so then how you give the price list for them, how you give the quotation for them using this sale quotation feature. Enable the sale quotation feature, you have to go to inventory tab. Here you can enable quotation option, this one, quotation, purchase quotation, both is available. Once you get enabled, then after you can come to the transaction screen. Here you can enter the sale quotation by like this. यहाँ पे जाके सेल कोटेशन हम एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब कस्टमर का मोबाइल नंबर हमने ऐड किया, मोबाइल नंबर हमने, आप देख सकते हो ये जो अलियास नाम है यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड किया है, इसीलिए हम नाम के बजाय मोबाइल नंबर डालने से भी पार्टी का नाम ऑटोमेटिक आ जाती है। ये पार्टी है, पार्टी का सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुकी है। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कि उनको क्या आइटम चाहिए, एयर कंडीशन कंडीशन चाहिए, नहीं तो कुछ गोदरेज रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो ऐसा हमने
उनको कोटेशन दे रहे हैं। प्राइस है 25,000, डिस्काउंट मांग रहा है 10%। फाइनली हम इसको सेव करते हैं और सेल्स कोटेशंस का कैसे प्रिंट आउट आता है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए सेल्स कोटेशन का प्रिंट आउट। ये लोगो थोड़ा सा सेंटर में आ रहा है, ये आपका मर्जी है, आपको लेफ्ट में लगाना है राइट में लगाना है तो लगा सकते हो। इट इज सैंपल फॉर्मेट लेकिन इट इज कॉन्फ़िगरेबल। इसमें आपको सारी डिटेल में आ जाती है। इसका जीएसटी कितनी है, प्राइस कितनी है, बैंक डिटेल्स क्या है, आपका कंपनी का सील एंड सिग्नेचर, सब कुछ कोटेशन पे आ जाता है। कोटेशन का रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि हमने कितने सारे पार्टी को, कस्टमर को कोटेशन दिया है, और उसका जानकारी आपको इन्वेंटरी रजिस्टर के अंदर सेल्स कोटेशन रजिस्टर करके मिलेगा। इसमें अलग अलग तरीके से आपको फिल्टर लगा सकते हो और उसको रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोटेशन दे दिया है फिर उसमें से इसको कन्वर्ट भी करना चाहते हो, सेल्स में आएंगे और उसको कोटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक आइटम यहाँ पे पार्टी का नाम लिया था अनन्या बोस करके, पार्टी का नाम लेके आइटम मास्टर पर F11 की प्रेस करने से पुराना वो जो पेंडिंग कोटेशन वो दिखेगा, सेलेक्ट करके हम उसमें उसको सेल्स में कन्वर्ट करके बिल राइज कर सकते हैं। दोबारा एंटर करना जरूरत नहीं रहेगा, जस्ट उसको F11 से हम पिक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो चैलेंज है एस्टिमेशन देना, ये इजी में सॉल्व हो जाता है। अगले पॉइंट है हमारा, हाउ कैन आई ट्रैक पेंडिंग ऑर्डर्स। तो पेंडिंग ऑर्डर्स भी ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर को यूज करके। ये यूज करने के लिए इन्वेंट्री के अंदर ऑर्डर करके एक ऑप्शन होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को एनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर रेज कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है, अगर हम सेल्स परचेस करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इतनी आइटम्स चाहिए, आप इसको सप्लाई करिए। ऑर्डर तो आउटवर्ड के केस में होता है, परचेस ऑर्डर इनवर्ड के केस में होता है। लेट अस से एग्जांपल, हमने गोदरेज कंपनी को की ऑर्डर दे दिया कि इतनी सारे वॉशिंग मशीन चाहिए। हमने उनको बोल दिया कि हमको 10 वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रंट लोड भी चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी 10 चाहिए। गोदरेज कंपनी क्या करेगा, परचेस ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, परचेस मतलब सप्लाई करेगा। सप्लाई कैसे होगा, इनवॉइस राइज होता है। तो अब हमारे पास इनवॉइस आ गया है, उनका इनवॉइस आ गया, तो उसको मैंने एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे F11 की यूज करके सारे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेगा। इनमें से अगर कौन सी ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने सप्लाई किया है, हो सकता है मैंने मल्टीपल पीओ राइज किया था, 4 राइज किया था, उनमें से उन्होंने एक ही डिलीवरी पे सारे मेरे को सप्लाई कर दिया, एक ही गाड़ी पे लोड करके। मैं मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, सो देन आई कैन load all the products. All the products can appear like this. Here, if I want to change any quantity, I can change it. मैं यहाँ से कोई क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैन्युअली इसको चेंज कर सकता हूँ। गाइस ये सब चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है। तो ये हम बिल को देख के चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। ये मान के चलिए हम यहाँ पर अब इसका सीरियल नंबर ऑटो नंबरिंग सेट किया हुआ है, आइटम सीरियल नंबर। अगर ये सीरियल नंबर आपको नहीं लगाना है तो बाद में लगाना है, तो फिर इसको बाद में भी लगा सकता है, बाहर से एक ऑप्शन भी है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। जनरेशन अभी नहीं होगा क्योंकि मैं ऑटो नंबरिंग यूज किया था। इसका एक शॉर्टकट की है Alt+M। Alt+M प्रेस करके ऑटो नंबरिंग से मैन्युअल नंबरिंग पे जाके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये सीरियल नंबर हम इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, ये होगा मैनुअल नंबरिंग। सो मैंने ऑटो नंबरिंग एनेबल किया था, फिर उसको मैनुअल में भी हम एंटर कर सकते हैं और इसका सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं, कलर है तो कलर ऐड कर सकते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शंस कलर करके मैंने एक ही एनेबल किया हूँ, इनमें से 10 डिस्क्रिप्शन हम लगा सकते हैं। इसका इमेज भी लगा सकता है हर एक सीरियल नंबर का। हम अभी के लिए इसको सेव कर लेते हैं। परचेज बिल नंबर एंटर किया, फिर मैंने इसको सेव किया। फ्यूचर में अगर आपको सीरियल नंबर सही है क्या गलत है क्या उसको दोबारा अपडेट करनी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मिसलेनियस डेटा एंट्री, जिसमें आके आप आइटम सीरियल नंबर को अपडेट कर सकते हो। परचेज बिल नंबर 36 ओपन करूंगा यहाँ से, ये मेरा परचेज बिल है। अब देखिए ये सारे सीरियल नंबर्स यहाँ पर शो हो रहा है गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर का। अगर मैंने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का सीरियल नंबर परचेज बिल पे एंट्री नहीं किया है, तो इसको यहाँ से भी हम अपडेट कर सकते हैं। एंटर मार के इसको ओके करेंगे ना, तो फिर इसका सीरियल नंबर अपडेट हो जाता है। कभी हम एंट्री करने पर गलत कर देते हैं, जैसे परचेज चढ़ाएंगे लेकिन सीरियल नंबर उसको अपडेट ही नहीं करेंगे, उसको बाद में आके यहाँ से हम उसको अपडेट कर सकते हैं।
देखिए ओपन करा, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर हमने मैनुअल और ऑटोमेटिक किस तरीके से चाहिए उस तरीके से इसको कर सकते हैं. यू कैन अपडेट द सीरियल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लेटर, देन यू कैन सेव इट. नाउ यू कैन सी हियर all the serial numbers are get updated. This way you can update the serial numbers afterwards. So this is a order processing management with Busy. So later on you can get all kind of reports related to order management. Here you have a provision: display sections, quotation order, challan processing, pending orders. Either you can see the sales order report or you can see the purchase order report, either by party wise or by item wise. Both way you can see the reports. And there are multiple types of filters available: party, single party, all item, single item. So how you want the report, that you can get the report by here. So currently you can see the Delhi Public School Society, there is 8 number of items, 8 number of quantity. If I want to see item wise, I can go for item wise and I can see the report like this. These many pending orders, these many items are still pending. So you can see the quantities here, you can see the values also. This is how we can manage our order processing. At any point of time, some of the orders are rejected. Easily you can clear by here by pressing the F4 shortcut key. Some of the cases, the customer or vendor said that I don't want further delivery. You can please cancel the remaining quantity. So simply you can come here and you can specify the remarks, order cancelled. F4 shortcut key and define the remarks why the order has cancelled. This is how the order management model work in Busy. Now next we will discuss about how can I manage item installation details. This is very important thing for the electronics store, because some of the items such as air condition, etc., the warranty will be start after the installation, not after sales. To manage these things, you have to enable the option called installation details. Let me show you that. For example, Tata Voltas split AC. Here you can see the contract is warranty. In this particular screen, you can see the installation warranty also, as well as warranty. Both it is enabled. यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन वारंटी एंड सेल वारंटी दोनों आपको एनेबल कर सकते हैं. उसके बाद मान के चलिए आप इस आइटम को सेल करते हो कस्टमर को. सेल करने के बाद में इंस्टॉलेशन होता है, तो इंस्टॉलेशन के बाद आप उसका इंस्टॉलेशन डिटेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज इंस्टॉलेशन डिटेल करके एक ऑप्शन होता है मिसलेनियस डेटा एंट्री पे. में जाके हम आइटम का नाम सेलेक्ट करेंगे और सीरियल नंबर, अगर आपको पता है सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं, आप ये सारी डिटेल्स फिल होके आ जाती है. इसको टाइप नहीं करते हैं, सिर्फ ये बताएंगे कि आइटम 17 को सेल हुआ था, लेकिन मैंने कब इसको इंस्टॉलेशन करा. We did the installation on 20th of January. Which dealer they have installed the product? You can select the dealer name. The dealer name is dealer. You can select the dealer name. Installation warranty you can mention. Organization name, company name. Company name is come automatically, but I was not entered any company name in the party master. That is why it is not came. Otherwise it will came. Only you can update it. The country is India, is Maharashtra, for example. City is Mumbai. You can save it. This is how we can handle the installation detail. Further, you can see the report by here. Item serial number history. You can put the serial number of the product, view the report. This is the serial number wise report. In that you can see the warranty also, whether the warranty is available or not. If this product is under warranty, you can see that warranty date also. Then you can see the item serial number, stocks, everything by here. Even you can see the item serial number installation. This is separate report for available for रियल नंबर वाइज इंस्टॉलेशन डिटेल्स. इसमें आपको ये पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कब सेल हुआ था, किसको सेल हुआ था, इसका इनवॉइस नंबर, डेट क्या है और वारंटी मंथ क्या है, ये आपको यहाँ से शो कर देता है. तो एंटर करके आप दोबारा इसको अपडेट भी कर सकते हो. तो इन दिस वे यू कैन मैनेज द सीरियल नंबर विद इंस्टॉलेशन एंड वारंटी. नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ कैन आई एंश्योर फुल डिटेल्स आर प्रिंटेड ऑन द बिल. तो ये आपको कॉन्फ़िगरेबल है. मैंने आपको बताया था कि इनवॉइस के अंदर आपको कोई भी करना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू इट बाय योर ओन वे. Advanced and standard, there are two types of configurations are available. So this is, you can see that this is the standard invoice format. अगर इसको इसमें लोगो लगाना है, QR कोड लगाना है, बैंक डिटेल्स लगाना है,
टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना है, कुछ भी करना है, तो दिस इज कॉन्फ़िगरेबल. So later on you can take the printout. Even you can share the printout because we are having some SMS sending feature, WhatsApp sharing feature, email feature, etc. from here. You can see here email option is there, SMS feature is there. Directly the SMS will send to the customer or WhatsApp can send. And the Google Drive upload provision also there. ये जो इनवॉइस मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था, इसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके रख सकते हो. फ्यूचर में आपका डेटा कुछ करप्ट होता है, बैकअप भी नहीं है आपके पास, फिर एक सेट ऑफ कॉपी गूगल ड्राइव में रहेगा, वहां से उसको डाउनलोड करके आगे आगे आपका जीएसटी का काम सब कुछ कर सकते हो. नहीं तो दोबारा उस एंट्री को री एंटर कर सकते हो. वंस इनवॉइस प्रिंटिंग तो हो पाएगा. हाउ कैन आई शेयर द बिल विद कस्टमर? मैंने बताया था आपको, यहाँ से आपको बिल सब कुछ भेज सकते हो, ईमेल, व्हाट्सएप, ये भी कर सकते हैं. तो आप कस्टमर का डिटेल वहाँ पे एंटर किया है, मेल आईडी ये सब कुछ एंटर किया है, तो फिर मेल ऑटोमेटिक चला जाएगा. नहीं तो आप मेल आईडी दोबारा यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. कि मान के चलिए इस बिल को हमने सेव किया, ईमेल भेजना है, तो यहाँ से हम इस तरीके से ईमेल में जाएंगे, तो ये मेरा मेल आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, पार्टी का मेल आईडी स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा. हेडर, फूटर, ये सभी आ जाएगा. मल्टीपल मेल्स एक साथ भी सेंड कर सकते हैं सेमी कॉलम के साथ. देखिए यहाँ पे मेल चला गया, मेल आपका इनबॉक्स में आ जाती है विद अटैचमेंट. यहाँ से आप देख सकते हो ये मेरा मेल है, डियर सर प्लीज फाइंड द अटैच्ड इनवॉइस. इस तरीके से अटैचमेंट आ जाती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ कैन आई इंक्लूड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस इन द बिल. ये एक बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री में. सो यू कैन अप्लाई द बिल सन्ड्रीज. So bill sundries everyone knows in Busy. So this is one type of additional charges entry field. यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्काउंट ऐड किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 500 ऐड किया है, डिलीवरी चार्जेस ऐड किया है, वारंटी एक्सटेंशन चार्जेस ऐड किया है. तो इस तरीके से आपने ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एडिशनल चार्जेस होता है ऐड कर सकते हैं. ये कैसे बनाया है ये भी हम देख लेते हैं. देख लीजिए यहाँ पे इसको बनाया गया है वारंटी एक्सटेंशन चार्जेस करके, और इसका एक हेड भी बनाया गया है इंस्टॉलेशन चार्जेस. ये जो अकाउंटिंग के अंदर इनडायरेक्ट इनकम के अंदर क्रिएट हो चुकी है इस वाली लेजर, और इसको यहाँ पर मैपिंग कर दिया गया है. आपका अकाउंटिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है और बिल पे भी वैल्यू ऐड होता है. नेक्स्ट है हाउ डू आई कैलकुलेट ईएमआई. काफी जरूरी है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम बिल बनाएंगे तब ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हम समझ लेते हैं. जैसे मान के चलिए अभी मैं एक पार्टी को कुछ आइटम सेल किया, जैसे कि वॉशिंग मशीन. वो कहेगा कि मैंने 6 मंथ के अंदर इसको पे कर दूंगा सर, मेरे को 6 मंथ का टाइम दीजिए करके कहेगा. तो फिर हम उसको वारंटी प्लस ईएमआई का प्रोविजन दोनों प्रोवाइड करना पड़ता है. सो दोनों बिजी में हो पाती है. कैसे करना है इसको एक बार बताता हूँ. देखिए यहाँ पे अगर वो ईएमआई का ऑप्शन में जानना चाहता है, तो फिर हम यहाँ पे इसमें एंट्री करना पड़ेगा. ये जो नाम के बगल पे एक फील्ड होता है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा. कार्ड में नहीं है, कैश में नहीं है, यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर ओके करेंगे. फिर आगे हमारे जो बिल बाय बिल का विंडो अपीयर होता है. इन दिस विंडो you can use this option called split reference. Customer said that I need 6 months of time to complete this payment. You can use here monthly and number of references 6. After you can split the references. You can see here the 6 references has been created. After you can specify the EMI month 1, EMI 2. के बाद आपको यहाँ पे EMI 3 बता सकते हो, EMI 4, 5, EMI 6. इस तरीके से EMI हमने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर सेव कर सकते हैं. एक कस्टमर क्या करेगा, उनका प्रिंट आउट मांगेगा. अगर सर आई नीड द प्रिंट आउट ऑफ दिस EMI ऑप्शन, सो यू कैन प्रोवाइड द प्रिंट आउट ऑल्सो. यू कैन सी द प्रिंट आउट. configurable. This is the configurable for your reference. See the my details. Reference 1, reference date, due date, amount is how much, what is the everything is coming in this report. Not report it is, it's a printed format. Apart from the invoice copy, you can give the EMI details also for the customers. इस तरीके से हमने ये जो EMI डिटेल्स का जानकारी भी कस्टमर्स को प्रिंट करके दे सकते हैं. Now let us discuss about how to adjust the EMI values. For example, कस्टमर आपको पे किया, कस्टमर आपको पेमेंट किया है, तो उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं. रिसिप्ट वाउचर यू कैन एंटर द
रिसिप्ट। एग्जाम्पल, ये आपका कस्टमर ने आपको बैंक पर ट्रांसफर किया है, एसबीआई बैंक को जमा हुआ है। पार्टी का नाम है, मान लीजिए अनन्या बोस। ये हम लेते हैं, यहाँ पे नाम है मोहित आहूजा करके लेते हैं। इन्होंने आपको 4600 कुछ पे किया, 4000 रुपीज पे किया है, 1000 रुपीज पे किया है। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, 4667। जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हो, 4667। ये जो EMI 2 है उनका, फिर ये एडजस्ट कर लेते हैं। उनका लेजर हम व्यू करेंगे, मोहित आहूजा का लेजर व्यू करते हैं, तो इसमें आपको दिख जाती है कि मोहित आहूजा का टोटल बैलेंस कितना था, वो कितने बार पे किया, 2 बार पे किया है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है 18,000। तरीके से ये जो जान सकते हैं। नहीं तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि एजिंग पेएबल्स, एजिंग रिसीवेबल्स, पार्टी का एजिंग रिसीवेबल्स अगर आपको देखना है, मोहित आहूजा करके लेते हैं, तो उन्होंने 0 to 30 डेज के अंदर एक EMI पे करना है, 31 to 60 सेकेंड EMI, 61 to 90 थर्ड EMI। तो ऐसा पे करना पड़ेगा। अभी तक कितना पे किया है, कितना पेंडिंग है, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है। नहीं तो बिल वाइज रिसीवेबल भी चेक करना है, वो भी यहाँ से ऑल्सो सी द बिल वाइज रिसीवेबल रिपोर्ट। You can see the report here. So there are 4 EMIs are left, and what will be the due days? This EMI is 99 days, this EMI is 68, this EMI is 38, this is 7. This is how we can manage our EMIs in the electronic store. Next point, we are going to discuss about how can I manage items returned or replaced by the customer. This we know that sales return. सपोज मैंने एक आइटम को सेल किया, कस्टमर कहा था कि ये मेरे को नहीं चाहिए सर, ड्यू टू सम रीजन दिस आइटम इज नॉट वर्किंग, समटाइम्स द वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग, दे सेड दैट टू टेक बैक। सो फिर हम इसको सेल्स रिटर्न के द्वारा कर सकते हैं। पर हमारे पास सेल्स रिटर्न का प्रोविजन है, इसमें जाएंगे, वी विल एंटर द डेट, कैन सेलेक्ट द, सपोज इफ दिस प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी, दे सेड दैट टू टेक बैक द प्रोडक्ट, गिव सम अदर प्रोडक्ट, भी होता है, राइट। तो फिर उस पार्टी का नाम हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, फिर हम यहाँ पर बिल नंबर एंटर करेंगे। तो ये बिल नंबर एंटर करने से ऑटोमेटिकली आपका पार्टी का बिल अपीयर होता है। तो हमारा बिल नंबर है, मान के चलिए 29 है। ये किस कस्टमर का है वो भी चेक कर लेते हैं, शर्मा है। यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं 1 दिसंबर को। माय बिल नंबर, you can see the validation. So original sales detail will came appear automatically. Finally, you can load the bill. So here the item is coming, Godrej washing machine. So you can adjust the serial number. यहाँ पे serial number भी अपने आप आ जाती है. Yes, you can take back the product. This is one way. Guys, when you're doing some sale voucher transaction from Busy, instantly you can take the return. That is called as one feature is available here. That is allow sales return in sale voucher. That you can enable it from inventory side. So whenever you're doing such transactions, you can select the product and add the product by negative value, -1. Enter the value like -1, then it is treated as a sales return. That you can make another item as a build item. This one is the build item, serial number. This one is the build item. This one is the return item. So ये आप एक ही बिल के अंदर रिटर्न भी ले सकते हो, सेल्स भी कर सकते हो. Finally, end of the day, if you want to view the report, you can come to the inventory books, inventory registers. Here you have all the types of registers, return register, sale register, purchase register, and everything. So ये आपको रिपोर्ट में मिल जाती है. This is how we can manage the sales return voucher. If you are thinking about how to maintain the inventory, so there are different types of inventory related challenges also that we will discuss now. How can I manage inventory by category, TV, AC, etc. काफी simple है. So if you want to manage your inventory such as refrigerator, TV, etc. So you can create different groups: air conditioner, fans, refrigerator, speakers, television, etc. You can tag these particular groups under the item. अगर आप आइटम बनाते हो तो उस आइटम के अंदर ग्रुप क्या है वो ले सकते हो. फाइनली यू कैन सी द ग्रुप वाइज रिपोर्ट. आपके पास एक ऑप्शन होता है ग्रुप ऑफ आइटम्स. आपके पास एयर कंडीशनर कितना है, यू कैन सी द एयर कंडीशनर. हाउ मेनी टेलीविजन्स आर देयर, यू कैन सी द टेलीविजन्स. हाउ मेनी washing machines are there, you can see the washing machines. How many quantities are left, so that you can manage like this. Okay, next is you can have an option here, how can I manage inventory by brand wise, example LG, Samsung, etc. So that you can manage by using our category. So in the inventory option, there are on setting is available category. You can enable this one. Specify the caption here, brand.
After you can creating the when you creating the item master from Busy, it will ask you to add the brand. You can see the either you can use the optional field or you can use this item category. There are two alternate options are available here. Any one you can use. So either you can go for item optional field, master option field, or you can go for the item category. So you can define the brand. Samsung is the brand for this item. Whenever you are generating any such reports from Busy, either it is sale register or sometime it is a stock register, it will ask you to select the brand. This brand is, for example, Havells. You can select it is Havells and you can generate the report. Now you can see the stock status of Havells. Initially, you can see some other brands, LG, Sage, etc. This is how we can manage the stocks. Okay, next thing here is how can I manage inventory by model number? Most of the electronic goods will have their model number that you can manage it by using the alias name. यहाँ पे alias करके एक फील्ड होता है ना, उसको यूज कर सकते हैं मॉडल नंबर एंटर करने के लिए. सो मॉडल नंबर यहाँ पर बता सकते हो तो ताकि आपको मॉडल नंबर यहाँ पे कर सकते हैं. This how can I track the serial number of each item? You can track the serial number of each item by this report, serial number wise report, item serial number wise stocks. Report will give you entire information about the serial numbers. This item, how many serial numbers are there, and LG, how many serial numbers are there. This is the closing stock report. You can also see the history of the serial numbers. For example, this is your serial number. Enter the serial number and see the report history. When you purchased, when you stock transferred, when you sold, everything you can get it from here. Either this item is under the warranty or not. So detailed report can be visible here. Okay. Next point here, how can I record the item details, color, wattage, etc. That can simply manage by using the descriptions. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके ऑप्शन है, सबको पता है. तो इस पर आप ऐड कर सकते हो कि इस आइटम का क्या डिस्क्रिप्शन है, वैटेज कितना है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, वो लिख सकते हो ताकि बिलिंग एंट्री पर वो आपको एक स्क्रीन खुल के आता है, वहां पे वो दिखेगा जस्ट लाइक इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो. प्लीज हाउ कैन आई ट्रैक इन्वेंटरी बाय लोकेशन, फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर. ये आपको मटेरियल सेंटर वाली फीचर से यूज होता है. हर एक बिल के बाद आपको मटेरियल सेंटर सिलेक्शन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो. एक आइटम हमने ग्राउंड फ्लोर में रखा है तो ग्राउंड फ्लोर से डिलीवर कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर करके ले सकते हैं. फ्लोर से हमने डिलीवर करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर करके ले सकते हैं. आइटम के बाद ये विंडो आपको अपीयर होता है सेल्स और परचेज दोनों पर. आपको मटेरियल सेंटर फीचर यूज करके मैनेज कर सकते हो. फाइनली एंड ऑफ द डे आपको यहाँ से रिपोर्ट भी मिलेगा स्टॉक स्टेटस के अंदर. ये देख सकते हैं कि कितने सारे आइटम्स आपके फर्स्ट फ्लोर में है, कितने सारे प्रोडक्ट ग्राउंड फ्लोर में है, कितने सारे प्रोडक्ट आपका गोडाउन पर है. डिटेल्ड रिपोर्ट हम जान सकते हैं. एक गोडाउन का डिटेल्ड रिपोर्ट इस तरीके से मिलेगा. हम देखते हैं कि हाउ कैन आई ट्रैक द इन्वेंट्री मूवमेंट्स. यू कैन ट्रैक योर इन्वेंट्री मूवमेंट्स बाय स्टॉक ट्रांसफर. स्टॉक ट्रांसफर ऐसा एक एंट्री है, इसको यूज करके एक गोडाउन का स्टॉक दूसरा गोडाउन पे मूव कर सकते हैं. स्टॉक होता है उसको हम ग्राउंड फ्लोर में लेके जाते हैं, शोरूम पर लेके जाते हैं. तो ये हम स्टॉक ट्रांसफर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं. आपको कितनी क्वांटिटी लेके गया, कौन सी सीरियल नंबर को लेके गया, तो ये सारी जानकारी वहाँ पे फीड कर सकते हो. ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स का कुछ अदर चैलेंजेस भी होता है, जैसे कि हाउ टू ट्रैक पेंडिंग बैलेंसेस फॉर ईएमआई परचेज. तो ईएमआई परचेज के बाद ये जो मैंने डिस्कस किया था आपसे, ईएमआई के बाद कितनी सारी ईएमआई उन्होंने पे किया है उनका लेजर स्टेटमेंट से आपको पता चलता है. ये आप रेफर कर सकते हो. 28,000 हमने इनको क्रेडिट दिया था, उनमें से 2 ईएमआई अभी आ चुका है, रिमेनिंग 4 ईएमआई बच गया है. तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है एनालिसिस रिपोर्ट पर. हाउ टू ट्रैक द सेल्समैन परफॉर्मेंस फॉर इंसेंटिव्स. ये काफी जरूरी है कि आप ये कर सकते हो. टारगेट मैनेजमेंट करके फीचर है अकाउंट्स टैब में, वो यूज करके आप ये जान सकते हैं कि कौन से सेल्समैन का कितना कितना टारगेट अचीव हो चुका है, किसका हुआ है. उनको इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, हर मंथ के अनुसार उसको चेक कर सकते हैं. अप्रैल मंथ में रवि कुमार शर्मा जी ने इतने सारे टारगेट था, उनका इतना टारगेट किया, उसका ज्यादा हुआ है, कम ही हुआ है. अगर कम हुआ है तो माइनस फिगर दिखेगा, ज्यादा हुआ है तो पॉजिटिव फिगर दिखेगा. और उनको कितना इंसेंटिव देना है, लास्ट वाली कॉलम में इंसेंटिव अमाउंट भी आ जाती है. फिर यहाँ से F4 करके डायरेक्टली इंसेंटिव भी पोस्ट कर सकते हैं. वो आपका फाइनल रिजल्ट्स में एक्सपेंसेस के अंडर शो करेगा.
है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिशियन मेस्त्री कमीशन सेल्समैन फीचर को यूज करके कर सकते हो। का फीचर हमने एनेबल करके वो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेल्समैन और मेस्त्री का नाम क्रिएट कर सकते हो। उस मेस्त्री ने क्या किया, हमारे तरफ से आइटम्स लेके जाता है, उस हिसाब से कमीशन का रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होता है। ये हम मेस्त्री के हिसाब से और सेल्समैन और ब्रोकर के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको आइटम के हिसाब से भी कमीशन रिपोर्ट हम जनरेट करके कमीशन दे सकते हैं। हरीश शर्मा जी का इतनी सारे सेल हुआ था, इतने कमीशन देना है, राधिका जी का इतना सेल हुआ था, इतना कमीशन देना है, सब जानकारी आपको यहाँ से शो करेगा। ऑप्शन है यहाँ पर हाउ टू रिकंसिल पेमेंट्स कैश कार्ड यूपीआई। ये समरी रिपोर्ट करके मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर, सॉरी अकाउंट समरी पर सेटलमेंट समरी का रिपोर्ट है। इसमें देख सकते हैं कि कितनी कार्ड पेमेंट, कितनी कैश पेमेंट, कितनी यूपीआई पेमेंट आपको मिल चुका है। यूजर वाइज भी देख सकते हो, नहीं तो सीरीज वाइज बिल वाइज भी देख सकते हो। इससे आपको रिकंसिलिएशन काफी इजी हो जाता है। सो आज के दिन कितनी सारे कलेक्शंस हुआ है वो देखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कुछ मिसमैच हो जाती है। कैश कितना हुआ है, कार्ड कितना हुआ है, ये आपका अलग अलग फिल्टर्स है। वन सेटलमेंट, ऑल सेटलमेंट, ये सब आपने अलग अलग तरीके से फिल्टर्स लगा के देख सकते हो। ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड द डेबिट क्रेडिट फ्लोस। तो नहीं कि हमारा सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग आने वालों को मैच करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम हम एनेबल करेंगे, ताकि आपको कोई भी एक्सपेंसेस ये सब चढ़ाना है तो सिंगल एंट्री, मतलब डेबिट क्रेडिट का रूल जानना जरूरी नहीं है। सिंपली आप किसको पेमेंट दिया है, कितना दिया है, डायरेक्ट एंटर करके सेव कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट रूल जरूरी नहीं होता है। हाउ टू ट्रैक द स्टोर एक्सपेंसेस। स्टोर एक्सपेंसेस आपको काफी सारे होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होगा, टी कॉपी एक्सपेंसेस होगा। हर एक के लिए एक एक लेजर बना सकते हो। फिर आज के दिन कितना खर्चा किया वो आप एंटर करके, 100 रुपीज खर्चा किया है तो एंटर करके सेव कर सकते हो। तो पैसा आपने दिया है तो पेमेंट में एंट्री करना है, आया तो रिसिप्ट में करना पड़ता है। हाउ वी कैन मैनेज अकाउंटिंग वाउचर्स। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज मल्टीपल स्टोर्स। आपसे आपके पास एक स्टोर है, एक से ज्यादा स्टोर है, तो ब्रांच का फीचर आप यूज कर सकते हो। ब्रांच का फीचर यूज करके एक से ज्यादा स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग वाउचर सीरीज, मास्टर सीरीज रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका एक आइटम है, दो आइटम है, वो एक ब्रांच में वो डील होता है, दूसरा दो आइटम है दूसरे ब्रांच में डील होता है। ऐसा सिनारियो में आपको उसको मैपिंग कर सकते हैं। हेड ऑफिस का आइटम्स ब्रांच में नहीं दिखेगा, ब्रांच का आइटम हेड ऑफिस में नहीं दिखेगा। मान के चलिए अब यहाँ पर हमने हेड ऑफिस में बिलिंग करते हैं, तो इस पे आप देख सकते हो जो मेन ब्रांच है, मेन सीरीज करके क्रिएटेड है, सारे पार्टी का सारे नाम दिखेगा और आइटम इतने सारे दिखेगा दिखेगा। लेकिन आगे अगर मैं यहाँ से वो जो दूसरा ब्रांच है रोहिणी करके ब्रांच में लॉग इन करके देखते हैं, पर सारे कस्टमर्स का नाम नहीं दिखेगा। यू कांट सी द ऑल पार्टी नेम्स हियर, you can see only the two names because we are having master series group option. You can map your masters by branch wise. Even you can see the part item names, only the 4 5 items are visible here, remaining all are not visible, because we are having this option called as master series groups and voucher series groups. So at the end of the day, the data can be synchronized from branch to head office using the feature of HOBO data synchronization. So if you are a on-premise desktop product user, the data can be synchronized over the internet and static IP. But if you are a busy online user, the data can be stored in cloud and you can access those data by the internet. Because busy online अगर आप यूज करते हो, क्लाउड पे डेटा होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, ऑलवेज वो वहाँ पे ही डेटा होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से डेस्कटॉप में चलाते हो सॉफ्टवेयर, तो फिर डेटा सिंक्रोनाइज बिजी में अपने आप हो पाएगा। पॉइंट वी विल डिस्कस ये जो फीचर के रिलेटेड, हाउ टू मैनेज प्री सेल एंड पोस्ट सेल इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये भी काफी जरूरी है, क्योंकि आपके पास काफी सारे तरीके से लीड भी आता है। कॉल आता है, व्हाट्सएप आता है, मेल आता है, नहीं तो किसी ने रेफर रेफर करेगा, नहीं तो आप बाहर से कोई एक्टिविटी करके लीड को कलेक्ट करते हो। तो ये आपके पास एक फीचर है बिजी में, जैसे कि इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट। इसको पहले एनेबल करिए, उसके बाद कोई भी कॉल अगर आपके पास आएगा, रिसिप्ट एंट्री कीजिए, कॉल रिसिप्ट। यहाँ देखिए कॉल रिसिप्ट करके एक ऑप्शन होता है। सो देखिए, आई कैन शो यू एन एग्जांपल। यू हैव रिसीव्ड ऑन कॉल, name I can create here Ramji. You can also type their mobile number, mail ID. If they are given, you can type their mail ID also and save the
contact master, and ask them how you get my number and how you know our product. They said that existing customer. Fine. And which salesmen have received the lead? For example, Harish Mishra ji have received the lead. What asking? So उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक एसी चाहिए, गोदरेज का एक एसी चाहिए, एलजी का एसी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे एंटर किया। फिर ये लीड का कुछ जानकारी है वो लिख सकते हो। सो इंक्वायर्ड बाय एसी, ऐसा कुछ लिख सकते हो रिमार्क्स में। फिर ये लीड अभी ओपन है, अंडर प्रोसेस है, हम अभी कॉल उठाया था, नेक्स्ट एक्शन क्या करना है, ये सब फीड करके सेव किया। फिर आपको अलोकेशन कर सकते हैं कि ये लीड किसको देना है फॉलो अप के लिए। सो वी आर गिवन दिस लीड टू राधिका। राधिका हैज डूइंग नेक्स्ट फॉलो अप टू द कस्टमर्स। नाउ वी हैव रिसीव्ड वन लीड। सो नेक्स्ट आपको फॉलो अप करने के लिए यहाँ पर एक विंडो होता है कॉल मैनेजमेंट। कॉल मैनेजमेंट पे जाके आप देख सकते हो कि किस एग्जीक्यूटिव के पास कितनी लीड है। सबका देखना है तो सबका देख सकते हो, नहीं तो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव का नाम लेके देख सकते हो। तो उनके पास कितना लीड चला गया है, कितना क्लोज है, कितना ओपन है, सब कुछ आपको फिल्टर लगा के देख सकते हैं। सिर्फ क्लोज लीड देखना है, नहीं तो दोनों देखना है, डेट वाइज देखना है, ये सभी आपको यहाँ से फिल्टर लगा के देख सकते हो। इफ इन केस ये लीड अगर मैच्योर हो गया तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि नोट करके, नहीं तो लीड इज क्लोज्ड होता है, इसका होता है क्लोज होता है, सक्सेसफुल करके लिखिए, अपडेट करना है। अब लीड क्लोज हो गया। क्लोज के बाद आप इसको बिल बना के आइटम को डिलीवर कर सकते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी मैनेजमेंट। सिमिलरली आप इसमें सपोर्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे सेल्स के बाद सपोर्ट आता है, सो सपोर्ट का कॉल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सपोर्ट में जाइए, पार्टी का नाम ले लीजिए, उन्होंने किसने इस कॉल को रिसीव किया है, किस एग्जीक्यूटिव ने रिसीव किया है, उस एग्जीक्यूटिव के नाम से एक प्रोफाइल बना दीजिए। फिर आइटम उन्होंने परचेज किया था, किसके लिए उन्होंने कॉल किया था, उस आइटम का नाम ले लीजिए। फिर उनका प्रॉब्लम, सो वो कहेगा कि नॉट वर्किंग दिस आइटम, यू कैन अलोकेट दिस हियर। सो फिर बाद आपने यहाँ से एग्जीक्यूटिव को अलोकेट कीजिए, किस एग्जीक्यूटिव ने इसको अटेंड करना है। एग्जीक्यूटिव जाके उस साइट में अटेंड करेगा, फील्ड में जाके फिर इसको स्टेटस अपडेट करेगा। तो इस तरीके से हमने पोस्ट सेल मैनेजमेंट भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आपको चाहिए इस इंडस्ट्री में, हाउ टू मैनेज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सेल्स एंड सेटलमेंट्स। सो बिजी में बिजी रिकॉम का इंटीग्रेशन है। थ्रू दिस इंटीग्रेशन यू कैन डाउनलोड द अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई डेटा डायरेक्टली टू द बिजी। तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ से, ये जो डाउनलोड ऑर्डर्स करके होता है, इस पे जाके 50 के बिटवीन स्टार्ट डेट, ओके, हमारा डेट 10 डालते हैं, यहाँ पे 15 डालते हैं। देखिए अभी ये हम अमेजॉन पोर्टल का डेटा है, वहां पे ऑनलाइन में हमने सेल किया था ना, वो अमेजॉन पोर्टल से डेटा यहाँ पे सिंक हो रहा है। डेट के अनुसार हमने 7 दिन का डेटा एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसको बिजी में सेव कर सकते हैं। सेव के बाद क्या होता है, जीएसटी फाइलिंग यहाँ से कर सकते हो, और पेमेंट रिकंसिलेशंस भी कर सकते हो, और आपको जो अकाउंटिंग कर सकते हो। सेटलमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। सेटलमेंट का मतलब अमेजॉन आपको कितने सारे बार पेमेंट किया है, कितनी कमीशन उन्होंने काट लिया है, टीडीएस काटा है, कितना टीसीएस काटा है, ये सभी जानकारी आपको एक स्क्रीन में आ जाता है। तो आपका ऑनलाइन सेलिंग का काम भी बिजी से हो पाता है। फिर ये सेटलमेंट का डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। गुड्स अगर रिटर्न आ चुकी है, आपने सेल किया था लेकिन पार्टी ने वापस कर दिया, फिर वो आपके पास आया है कि नहीं आया, बीच में आने के वक्त वो लॉस्ट हो गया, if this you can update the status over here. This is how you can do the verifications. Also you can have different types of report for this particular option: payment reconciliation, settlement summary, goods return verification, top selling SKUs. There are many other reports are there. So through the busy recom module, the seller can do their operations in all the ways. So this is how you can do the busy recom integration with busy, and you can use it for your online selling purpose. So next thing I want to tell you, how to access your business report in this industry anytime, anywhere. Through the busy mobile application, you can manage your business. So I can share my screen here. Busy App Store and Play Store you are getting even on mobile application, busy mobile application. सो ये आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ से आपको पार्टी का लेजर देख सकते हैं, और पार्टी का लेजर ओपन करके उनको शेयर कर सकते हैं। सो शेयरिंग ऑप्शन है, एंट्री का ऑप्शन भी है,
और यहाँ से आपको काफी सारे डैशबोर्ड में रिपोर्ट मिलेगा, सेल रिपोर्ट, रिसीप्ट, कैश, एवरीथिंग। और आपको पंच करना है, यहाँ से कोटेशन एंट्री कर सकते हैं, इनवॉइस एंट्री कर सकते हैं, सेल्समैन का नाम लेके इनवॉइस बना सकते हो, आइटम का नाम आता है, चेक कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग आपने कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अब ये रिपोर्ट्स, स्टोर का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, हाउ टू चेक द बेस्ट सेलिंग आइटम्स, सेल्स एनालिसिस आप कर सकते हो। जैसे कि डिस्प्ले में आएंगे यहाँ से, वाइज, पार्टी वाइज, मंथली, क्वार्टरली सेल्स एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सी मंथ में कितनी सारे आइटम्स बिका है। अब ये देखिए, हर एक आइटम का सेल आपको ग्राफिकल इंटरफेस के रूप में मिलेगा। ऐसा करके हम देख सकते हैं किस मंथ में ज्यादा सेल हुआ है, ये के साथ आपको ग्राफिकली भी मिलेगा। पर एनालिसिस भी कर सकते हो और आपको डेट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट विच आइटम्स आर नॉट सेलिंग। ये काफी जरूरी है कि एंड ऑफ द डे आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से आइटम आपका कम सेल हो रहा है। तो ये अनमूव्ड आइटम्स करके एक ऑप्शन होता है, इसमें ब्रांड वाइज चेक कर सकते हैं। ब्रांड वाइज नहीं चाहिए तो सभी आइटम्स का अपने हैं कि किस आइटम आपका सेल नहीं हो रहा है। ये देखिए, क्रम्पटन पैन है, क्रम्पटन क्रम्पटन करके पैन, ये आइटम काफी कम सेल हो रहा है, आइटम्स। तो इस तरीके से रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। है हाउ टू एनालाइज द प्रॉफिट्स, ये जरूरी है। डिस्प्ले के अंदर एमआईएस रिपोर्ट मिलेगा, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, बिल वाइज, पार्टी वाइज, गोडाउन वाइज, आइटम वाइज, सीरियल नंबर वाइज, हर तरीके से आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज कर सकते हो कि इसमें आपको इतनी कॉस्ट पे आ गया, इतने को सेल किया, इतनी प्रॉफिट मिला है। कभी कभी प्रॉफिट माइनस में दिखेगा क्योंकि ये हमने सेल स्कीम दिया था, जैसे कि ऑफर सेट करके दिया था, ये आप देख सकते हो, इस आइटम के लिए ये आइटम फ्री में दिया था, इसलिए वो माइनस में दिखेगा। नहीं तो सेल प्राइस से भी कम देंगे क्योंकि कभी कभी ऑफर लॉन्च होता है, ये कारण से आपको माइनस फिगर यहाँ पे शो करता है। चैलेंजेस इन जीएसटी, जीएसटी काफी जरूरी है, एंड ऑफ द डे हम उसको देखना है जीएसटी को। अब ये अगर बिजी में बात करते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बिलिंग, ये सब हम कर सकते हैं। अगर बिजी में हम बिल करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग भी कर सकते हो, एक्सक्लूसिव बिलिंग भी कर सकते हो, बिल वाइज बिलिंग, मल्टी रेट भी कर सकते हो। आपको ई वे बिल इनवॉइसिंग भी बिजी से हो जाती है। सो ई वे बिल इनवॉइसिंग बिजी से ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो एक सिंगल क्लिक में, और बल्क में भी जनरेट हो जाती है। ई वे बिल इज मैंडेटरी, e-way bill is mandatory if bill is exceeds the threshold limit. Yes, automatic e-way bill generation is available. E-invoicing generation if needed. Yes, automatic e-invoicing also you can generate from this. So these are the important things for the GST. So, so as we discussed by the today class, I shown many challenges and relevant solution for that. So if you have any further assistance or any kind of questions, you can feel free to reach with our helpline number 8282828282. This is the 24/7 help desk number. And also you can write a mail to us, support@busy.in. So thank you so much for everyone to joining this webinar today. So thank you for